Welcome to Acadsa. Now we are going to discuss about the properties of carboxylic acid. The first one is the physical property. Before jumping into this topic, due to the possibility, carboxylic acid has the possibility to form hydrogen bonding. अब यहाँ पे दो carboxylic acid molecule will club together to form acid dimer. Through you can clearly see the hydrogen bonding के वजह से दोनों क्लब होके एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बन चुका है. नाउ दिस स्पेसिफिक नेचर affects the physical properties like boiling point, solubility as well as. तो अब देखते हैं boiling point. अब due to this acid dimer, the जो actual effective molecular mass है वो it becomes double the actual mass. तब जिसकी वजह से क्या होता है, it affects the boiling point. So it increases the boiling point of the carboxylic acid. If we compare the boiling point of carboxylic acid with alcohols, boiling point of carboxylic acid सबसे ज्यादा होता है due to this acid dimer formation, right? अगर हम ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एसिटिक एसिड और एक प्रोपेनॉल लेते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल है. अब एसिटिक एसिड का 118 है और प्रोपेनॉल का 97. The reason is dimeric form. Now let us move on to the solubility. So as we see the solubility, the carboxylic acid can form hydrogen bond with the water. तो ये soluble होता है, but there is some limitation. C1 से लेकर C5 का carboxylic acids आराम से soluble होता है. I mean they are miscible. अगर C5 से ज्यादा होता है तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कि अल्काइल ग्रुप है, वो ज्यादा हो जाता है, तो इसके वजह से solubility कम हो जाता है. Even interestingly, these carboxylic acids are also soluble in alcohol because they can form hydrogen bond with alcohols as well as, but उतना strong नहीं होता है. The third interesting fact is that carboxylic acid are quite soluble in non-polar solvent like benzene, CCl4. The reason behind is that in non-polar solvent as well, the carboxylic acid exists as dimer. तो इसके कारण वो non-polar solvent में भी dissolve होता है. Now move on to melting point. अब melting point की बात कर रहे हैं, तो जो even number of carboxylic acids रहते हैं, they have high melting point than the odd number of carboxylic acid group. The reason is stated due to the intermolecular forces of attraction among them. अब ये जो even है वो अच्छे से फिट होते हैं, अच्छे से फिट क्रिस्टल लैटिस में अच्छे फिट होता है. That is the reason उनका molecular forces ज्यादा होता है और melting point बढ़ जाता है. Now let us move on to the acidic strength of carboxylic acid. The carboxylic acid among the organic molecules सबसे strong होता है, although it is a weak acid comparative to everything, but like alcohol या amides या सबसे compare करने से carboxylic acid is most acidic and it is weak acid. अब इसमें क्या होता है, तो generally if it react with water it forms carboxylate ion and H3O plus hydronium ion. अब ये जो carboxylate ion है ये further resonance stabilized by the following structures. तो यहाँ पे चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है 2 ऑक्सीजन के ऊपर. अब ये जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है, अगर राइट साइड में जो अपन का कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है किसी कारण की वजह से, तब द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फिजिबल. फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब H3O plus is developed. Now let us say जो सब्सटेंट है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके ऊपर सब्सटेंट डालते हैं, तो वो किस प्रकार के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इंपैक्ट करता है. सो आई हैव टेकन 2 इंस्टेंसेस. वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिया है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलिटी देना है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन को इंक्रीज कर देता है. तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन डिक्रीजेस. अगर वो डिक्रीज होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा या कम हो जाएगा, इसीलिए एसिडिटी डिक्रीजेस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि चार्ज को खींच लेता है. खींच लेने से कार्बोक्सिलेट आयन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कम होगा और स्टेबिलिटी ऑफ द आयन बढ़ जाएगा. अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है
स्टूडेंट्स एसिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिंपल है। अब ये जो फैक्टर्स है जो कि सब्स्टिट्यूएंट के रिलेटेड है, वो किसके ऊपर निर्भर है? अगर आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के देखते हैं, इफ इट इज इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बहुत बढ़िया भाई, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अपन लोग ब्रोमीन, एक ब्रोमो है, ये डाई है, ये ट्राई है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंस थर्ड में ज्यादा है, मतलब 3 ब्रोमीन है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला और सबसे लीस्ट ये वाला। नाउ इफ आई टेक इन कॉन्ट्ररी टू दैट, जो सब्स्टिट्यूएंट है एडेड है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जनरली डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जितना कम होगा उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो इस एग्जांपल से वो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 R ग्रुप्स हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो जितना कम है वो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला एक ही है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, राइट। नाउ अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट जो है, लेट अस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है और उसको हम चेंज करते हैं तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड पे स्ट्रेंथ पे क्या होगा, लेट अस टेक एन एसिटिक एसिड हम लोग लेके यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट केस में आयोडीन दिया गया है, सेकंड में ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कैसे डिसाइड किया, ये वाला जो फ्लोरीन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, तो ये अच्छे से खींचता है तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। इस केस में हम एक एल्काइल ग्रुप लिए, इस केस में ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस केस में sp हाइब्रिडाइज्ड, and we know that students कि sp carbon is more electronegative than sp2 than sp3, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हो रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कार्बोक्सिलेट का एसिडिटी भी बढ़ जाएगा। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम एक ही सब्स्टिट्यूएंट लिए मगर उसका पोजीशन है, मतलब उसका जो डिस्टेंस बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है या कम है, तो क्या होगा, अगर दूर जा रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ये जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टेकन एन एग्जांपल ओवर हियर, ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे और ये वाला बीटा पे, तो ये नजदीक है तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ जाएगा। ओके, so students, to understand the concept better, I have given you question over here, so please pause the video and try to solve by yourself. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया गया, आपको डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक और फॉर्मिक एसिड। अब डिसाइड कैसे किया जाए, तो एक चीज है जो फैक्टर्स हम लोग याद किए, among all this फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा पुल करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज्ड होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। सो व्हाट वी हैव टू, द बी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद आप देखिए द नंबर भी 3 है तो क्लोरीन जाएगा, तो क्लोरीन वाला जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड उसके बाद आएगा। एंड नाउ वी नीड टू डिसाइड बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इन एसिटिक एसिड ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये वाला वैसा कुछ नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से एसिडिटी कम होगा तो सबसे कम C होगा एंड D विल बी ग्रेटर देन C, तो फाइनली द आंसर विल बी A। I hope you understood the concept well. Thank you.